Hello everyone, welcome back. Welcome to my channel Excel Economics. In today's video, we are going to continue for 12th class economics, that is Indian economy. We have already started Indian economy second chapter with economic planning 1950-1990. So in this period, when we had completed our 5-year plan, what was done in relation to industrial sector? Like in my previous videos, I have already completed with you agricultural sector, in which we have discussed the intermediaries issues, we have discussed the technical reforms, we have critically appraised the agriculture sector as well. Now we are moving towards industrial sector, means during this period what government has done in relation to advance our industrial sector. So here we go. Before I start, those who are new on my channel, please do like, share and subscribe my channel as well, and press on bell icon so that you can get time to time notification. So here we'll start with Indian economy, economic planning 1950-1990, industrial sector. So now we are going to discuss over. सबसे पहले हमें ये समझना है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर की रिक्वायरमेंट उसको आगे बढ़ाने की जरूरत क्यों थी. As we all know that industrial sector during British rule faced lots of problem because the systematic deindustrialization produced and done by the Britishers has actually declined our handicraft industry, our industrial sector. In the name of capital industry we had hardly any, and in the name of modern industry we had only few. That was not sufficient for the overall growth of the country. So when we have introduced economic planning system in 1951, our first 5-year plan was launched. That was in favor of agriculture sector. Immediately after, our great architect of economic planning, that is P.C. Mahalanobis, understood that there is a need to introduce also some impact, some functions, some policies in industrial sector. बिकॉज अगर इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं होंगी तो एग्रीकल्चर भी डेवलप नहीं हो पाएगा. तो उनके इस थॉट को समझा गया और 1956 की जो हमारी सेकेंड 5-year प्लान लॉन्च हुई, उसका मेन मोटिव ही था इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट. तो वहां से हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर पे फोकस करना शुरू किया. सो विद दिस मोटिव वी हैव इंट्रोड्यूस इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑल्सो फॉर डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट. बट अब जरूरत क्यों पड़ी हमें ये भी समझना है. क्या जरूरत थी? सबसे पहला, इंक्रीज इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम. वी ऑल नो जीडीपी ऑफ द कंट्री इज composed with the help of agriculture, industrial and service sector. So it was definitely we were in a urge to also contribute by industrial sector in our GDP. तो अगर जीडीपी को बढ़ाना था, हमें नेशनल इनकम को इंक्रीज करना था, तो ये जरूरी था कि हम इंडस्ट्रियल सेक्टर को एडवांस करें. बिकॉज ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड unemployment was created due to the shutdown of handicraft industry. So there was a need to boost industrial sector so that more and more employment generated, more production will be generated and overall GDP increases. When GDP increases, definitely it will be distributed among the people of the nation. So for this reason, we need to increase our GDP along with increase in per capita income. This is why we need industrial development at that time. Second reason was lesser pressure on land. मीन्स एग्रीकल्चर सेक्टर पे जो मैंने आपको रेशियो समझाया था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, 70 to 75 population was engaged in as a workforce in agriculture. So प्रेशर जो था एग्रीकल्चर लैंड पे उसको शिफ्ट करना था. फॉर दिस रीजन इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट बहुत ज्यादा जरूरी था, इसलिए इंडस्ट्रियल सेक्टर पे फोकस किया गया. नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. डेफिनेटली बिकॉज एग्रीकल्चर was based on oldest techniques or the ancient technique, traditional method of cultivation we were using. And industrial sector can give a boost to agriculture sector in the way by producing some machinery, tools and equipments. For this reason also industrial sector was required to be developed. It is just because through industrial sector government was in a state to produce more and more equipments for agricultural advancement. क्योंकि अगर faster grow करना है एग्रीकल्चर में तो टेक्निक तो लानी ही थी, और टेक्निक कहाँ से आएंगी? इंडस्ट्रियल सेक्टर से, क्योंकि मशीन और टूल्स और इक्विपमेंट्स कहाँ बनेंगे? इंडस्ट्रियल सेक्टर में. तो इसलिए जरूरी हो गया था कि हम इंडस्ट्रियल सेक्टर को एडवांस करें जिससे एग्रीकल्चर अपने आप ही डेवलप हो जाए. लाइक मैंने अभी स्टार्टिंग में भी कहा, पीसी महालनोबिस का बिल्कुल क्लियर कट ये विजन था, अगर इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी तो एग्रीकल्चर अपने आप ग्रो करना शुरू कर जाएगा.
लाइक क्योंकि सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो एग्रीकल्चर को चाहिए वो कहां से मिलेगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर से, राइट। सेकेंड, इंक्रीज इन रेट ऑफ पर कैपिटल फॉर्मेशन. Before I go with this, I need to add one more thing here in development of agriculture, that is क्योंकि डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर होता है तो साथ में रॉ मटेरियल बढ़ेगा, रॉ मटेरियल बढ़ेगा तो वो कहाँ जाएगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर में. तो दोनों ही एक दूसरे के साथ आगे ग्रो कर सकें, इस मोटिव के साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ाना जरूरी हो गया था. अब कैपिटल फॉर्मेशन, इट इज बट ऑब्वियस, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो प्रोड्यूस करेगी वो बिकेगा, बिकेगा तो इनकम आएगी, इनकम आएगी तो डिस्ट्रीब्यूट होगी, और लोगों की जो डिस्ट्रीब्यूशन से जो इनकम आ रही है उनकी सेविंग्स बढ़ेगी, सेविंग्स बढ़ेगी तो इकोनॉमी में इनकम पुल होगी, पुल अप होगी, इंक्रीज होगी, तो ओवरऑल कैपिटल फॉर्मेशन होगा. क्योंकि हमारे पास जब इनकम एक्स्ट्रा हो जाती है तो हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट ऐसी जगहों पे जिससे हमें फ्यूचर में रिटर्न्स मिलते रहें. तो कैपिटल फॉर्मेशन, यू ऑल नो, मैक्रो इकोनॉमिक्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं. कैपिटल फॉर्मेशन इज एक्चुअली इन्वेस्टमेंट. तो इंडस्ट्रियल सेक्टर हेल्प इन मेकिंग रेगुलर इन्वेस्टमेंट थ्रू विच वी कैन हैव आवर फ्यूचर रिटर्न्स इन प्रॉफिट. फॉर दिस रीजन इट वॉज हेल्पफुल. विच वन? Industrial sector was helpful in increasing the rate of capital formation. Next point, utilization of natural resources. Of course, because whatever is available in our country, that is mineral resources, we all know that we are rich in mineral resources, basically in Deccan plates. Jharkhand and Chhattisgarh and Odisha, these plates are actually having rich minerals, which can be used only through industrial sector. So there was a need to develop industrial sector so that this available natural resources can be used in optimum way. I'm not saying that exploitative way. It could be used and it can be used in optimum way through which we can generalize the uses, we can optimize the exploration as well as हम पूरी इकोनॉमी की ग्रो को कर सकें. तो पूरी इकोनॉमी की ग्रोथ डिपेंड करती है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर इस तरह से ग्रो करे कि वो जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उनको भी हम प्रॉपरली यूज कर सकें. लाइक आयरन ओर, कोल, ये सारे रिसोर्सेज हमारे पास हैं, बट इसको रैशनली मैक्सिमाइज्ड तरीके से मिनिमम एक्सप्लोरेशन के साथ यूज करना ही बड़ा टारगेट होता है. तो नेचुरल रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन किसके थ्रू पॉसिबल हो सकता था? इंडस्ट्रियल सेक्टर के थ्रू, इसलिए इस पे फोकस किया गया. नेक्स्ट, इंक्रीज इन फॉरेन ट्रेड. ऑफ कोर्स जब हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़ेंगे, डेवलप होंगे, ग्रो करेंगे तो डेफिनेटली जो प्रोडक्शन होगा वो बाहर भी जाएगा. लाइक वी ऑल नो, जो एग्रीकल्चर से प्रोड्यूस होता है वो रॉ फॉर्म होता है, उसको फाइनल फॉर्म में कन्वर्ट कहाँ किया जाएगा? इंडस्ट्रियल सेक्टर में. तो इंडस्ट्रियल सेक्टर से जब फाइनल फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो वो कहाँ जाएगा? हमें आगे बेचने के लिए भेजना है. एक्सपोर्ट होंगे, इम्पोर्ट होंगे, एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ने से इनकम बढ़ेगी तो फॉरेन ट्रेड अच्छा हो जाएगा. लास्ट इज प्रमोट इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन. दैट इज मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड विल डिस्कस इन दिस सेगमेंट एज वेल. प्रमोट इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, बिकॉज हम जो इम्पोर्ट कर रहे थे ड्यू टू दी मेहरबानी ऑफ ब्रिटिशर्स ने हमें इतना प्रेशराइज कर दिया था कि हम हर चीज बाहर से मंगवाने लग गए थे. तो हमें वो चीज को खत्म करके उन प्रोडक्ट्स को अपनी ही इंडस्ट्री में प्रोड्यूस करना और सेल्फ रिलायंट बनना. इसका सबसे बड़ा फोकस था कि पॉलिसी, ट्रेड, टर्म्स ऑफ ट्रेड इस तरह से बनाए जाए कि हम प्रेशराइज हो जाए, अपने इंपोर्ट्स को कम करके अपनी ही कंट्री में उन गुड्स को प्रोड्यूस करें. और वो कैसे होता है? टैरिफ एंड कोटास के थ्रू. यानी टैरिफ रेट यानी टैक्स रेट ऑन इंपोर्ट बढ़ा दी तो इंपोर्ट अपने आप डिस्करेज हो गए, और कोटास रेट कम कर दी यानी क्वांटिटी कम कर दी इंपोर्ट की तो इंपोर्ट अपने आप डिस्करेज हो गए, एंड ऑटोमेटिकली वो सारे गुड्स हमने अपनी कंट्री में प्रोड्यूस करना शुरू करे. तो दीज वर द रीजन फॉर विच इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज रिक्वायर्ड टू बी डेवलप. So write down the point, then we'll move to the public sector role in this category. क्योंकि आज के टॉपिक में हम डिस्कस कर रहे हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर, जिसमें मैंने आपको ये 4 पैरामीटर शो ऑलरेडी कर दिए कि ये पूरा टॉपिक जो है वो इन 4 सेगमेंट में डिस्कस होगा. पहला क्यों, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर. वाई मैंने लगाया, इसका मतलब यही है कि रोल, इंपॉर्टेंस और नीड ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर एट दैट टाइम. तो ये हमने नीड समझ लिए. अब हम इंडस्ट्रियल सेक्टर में पढ़ने वाले हैं पब्लिक सेक्टर रोल. क्यों उस वक्त जब हम 1956 में और 1950 से प्लानिंग शुरू कर रहे थे, हमारे पास पब्लिक सेक्टर को ही लीडिंग रोल देना इंपॉर्टेंट हो गया था. एक क्वेश्चन है जो हमेशा बनता है, आपकी टेक्स्ट बुक में भी है,
why public sector was given a leading role in development of industrial sector। तो क्यों पब्लिक सेक्टर को वो रोल दिया गया ये हमको समझना है। उसके बाद हम समझेंगे आईपीआर 1956। एक आईपीआर 1948 में आई थी, पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन केम इन 1956। इस पॉलिसी ने ड्रामेटिक चेंज किया हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में। फिर हम पढ़ेंगे द रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मींस कार्वे कमेटी। कार्वे कमेटी ने किस तरह से इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया और हमारी कंट्री में माइक्रो, स्मॉल, टाइनी जो छोटे लेवल की इंडस्ट्रीज हैं उनकी ग्रोथ पे भी फोकस किया। तो धीरे धीरे हम 1950 से 1990 तक के सफर में आते आते पब्लिक सेक्टर पीएसयूज बढ़ाए हमने, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को एडवांस किया, साथ में पॉलिसीज ऐसी लेकर आए कि हमने इंडस्ट्रीज को क्लासिफाइड किया और उसके साथ हमने स्मॉल लेवल की इंडस्ट्रीज को भी ग्रो किया। सो नाउ विल डिस्कस व्हाई पब्लिक सेक्टर हैज बीन गिवन अ लीडिंग रोल ड्यूरिंग दैट पीरियड। इट वाज कैटेगराइज्ड इन 3 पॉइंट्स। क्यों पब्लिक सेक्टर को जरूरत हो गई थी कि वो इस फील्ड में है, मैं जो बोल रही हूं उसको समझना है और आपको लिखना है। The point first, shortage of capital with private sector, यानी जो प्राइवेट सेक्टर था उस टाइम पे हमारी कंट्री में, उसके पास इतना फंड नहीं था, इतना अमाउंट नहीं था कि वो एक लार्ज स्केल का इन्वेस्टमेंट कर सके। मींस वो इतनी बड़ी इंडस्ट्री सेटअप करने की स्टेट में नहीं था जहां पे मेजर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और कंट्री की ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन दे सके। तो प्राइवेट सेक्टर कहीं ना कहीं फेल हो रहे थे उस टाइम पे इन टर्म्स ऑफ शॉर्टेज ऑफ फंड, क्योंकि कैपिटल नहीं था। अगर हम प्राइवेट सेक्टर में बात करें तो उस टाइम ओनली टाटा और बिरलास ही प्राइवेट सेक्टर में काम किया करते थे और यही रिच थे और यही सिर्फ कंट्रीब्यूट कर सकते थे इन ऑल टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, यानी कि हर तरह की इंडस्ट्री जो प्रोडक्शन में जरूरत होती है उसमें ये लगा सकते थे पैसा। बट ओनली दीज टू, यानी कि प्राइवेट सेक्टर ज्यादा हमारे पास नहीं था। जो था उनके पास भी इतना फंड नहीं था कि वो एक लार्ज स्केल पे बूस्ट कर सकें इंडस्ट्रियल सेक्टर को। इसलिए गवर्नमेंट ने पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को इंट्रोड्यूस किया। पब्लिक सेक्टर को रोल ज्यादा दे दिया कि वो, क्योंकि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास पैसा होगा ही, उस टाइम पे भी था, तो उस फंडिंग के थ्रू गवर्नमेंट ने बड़े लेवल के लार्ज स्केल के प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए, जिससे लोगों को रोजगार भी मिला और कई तरह से इंडस्ट्रीज 1 to 1 एडवांस होती चली गई। और हमारी कंट्री में पीएसयूज 18, 19, 20 बहुत सारे खुले। फिर मैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे बट इन दी नेक्स्ट सेगमेंट, राइट। फिर हमारा सेकेंड पॉइंट क्या था, लैक ऑफ इंसेंटिव्स फॉर प्राइवेट सेक्टर। लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर प्राइवेट सेक्टर, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए जो लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर प्राइवेट सेक्टर था वो हमें ये ऐसे समझना है, क्योंकि उस टाइम पे जब इंडिपेंडेंट हुआ इंडिया तो मार्केट इतनी बड़ी नहीं हुआ करती थी, डिमांड इतनी नहीं होती थी प्रोडक्ट्स की कि हम प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व कर दें और उनसे लार्ज स्केल के प्रोडक्शन या मेजर प्रोजेक्ट जो बड़े स्केल पे होने चाहिए थे हमारी कंट्री में वो उनके हाथ में दे सके। क्योंकि इतना बड़ा मार्केट साइज था नहीं, पॉपुलेशन इतनी हाई नहीं थी हमारे यहाँ उस टाइम पर। बिकॉज ऑफ दिस रीजन दे वर नॉट हैविंग सच इंसेंटिव्स टू प्रमोट प्राइवेट सेक्टर। इसलिए गवर्नमेंट वहां पे प्राइवेट सेक्टर को लेकर नहीं चल सकी, क्योंकि उनके पास उनको प्रमोट करने के लिए, फंडिंग करने के लिए और बड़े प्रोजेक्ट देने के लिए मार्केट ही नहीं था, डिमांड नहीं थी। तो डिमांड क्रिएट होगी तभी तो मार्केट बनेगी। आज के टाइम में अगर हम देखें तो प्राइवेट सेक्टर ज्यादा काम कर रहे हैं कंपेयर टू गवर्नमेंट सेक्टर। क्यों? क्योंकि मार्केट है, पॉपुलेशन है, डिमांड है, लोगों का कंपोजिशन, इंटरेस्ट, हैबिट, टेस्ट, प्रेफरेंसेस सब अलग अलग हैं और इसी कारण मार्केट में प्राइवेट सेक्टर छाया हुआ है, राइट। सो दिस इज व्हाट वाज नॉट देयर एट दैट टाइम। उस टाइम पे ऐसा नहीं था। उस टाइम पे ना तो लोगों की इतनी हैबिट्स थी, ना इतना टेस्ट था, ना ऐसी कोई डिमांड होती थी, जो था उसमें ही सेटिस्फाइड रहते थे। इसलिए प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा इंसेंटिव्स, ज्यादा प्रमोशंस नहीं मिला बड़े स्केल के प्रोजेक्ट लेने का। और ये सारे बड़े स्केल के प्रोजेक्ट किसके पास चले गए? गवर्नमेंट के पास। इसलिए गवर्नमेंट का रोल लीडिंग हो गया, गवर्नमेंट ज्यादा काम करने लगी। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर। वी ऑल नो दैट प्राइवेट सेक्टर को अगर हम रोल दे दें, प्राइवेट सेक्टर काम करे, तो आज के टाइम में भी आप कंपेयर करिए, प्राइवेट जो सेक्टर से जो गुड्स आती हैं वो महंगी होती हैं कंपेयर टू जो गवर्नमेंट सेक्टर से आती हैं।
आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? हम कोई चीज अगर गवर्नमेंट सेक्टर से लेते हैं या गवर्नमेंट पीएसयू से लेते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से, वो कंपैरेटिवली सस्ती पड़ती हैं प्राइवेट सेक्टर से। तो ये सेम सिनेरियो था। तो सोशल वेलफेयर इक्विटी अचीव करने के लिए भी गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट किया था प्राइवेट सेक्टर को इधर आने के लिए, क्योंकि वो ज्यादा प्राइस चार्ज करते और ज्यादा प्राइस क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का रोल क्या है, मार्केट इकोनॉमी क्या है, प्राइवेट सेक्टर। तो मार्केट इकोनॉमी का रोल क्या है, प्रॉफिट अर्न करना है। प्रॉफिट कैसे अर्न करना है, हार्डली मैटर, दे जस्ट नीड टू अर्न प्रॉफिट। तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो प्राइसेस बढ़ाएंगे, और प्राइसेस बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कौन कौन डिसएडवांटेज में आ जाएगा, पुअर। तो पुअर बिकम मोर पुअर, रिच बिकम मोर रिच। इन दैट केस, टू अवॉइड दिस डिस्क्रिपेंसी, टू अवॉइड दिस inequality, government had to take the immediate action towards social welfare. इसलिए गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा एनकरेज नहीं किया, so that they can avoid this inequality in the country and can achieve the goal equity. Are you getting this point? हमारे जेम्स साथ साथ चलेंगे। ग्रोथ के लिए आना था, ग्रोथ देनी थी, प्राइवेट सेक्टर के पास ज्यादा था नहीं, इसलिए गवर्नमेंट का रोल जरूरी हो गया था। मॉडर्नाइजेशन लेकर आना था, इक्विटी सबसे बड़ा फैक्टर था, इसलिए सोशल वेलफेयर अचीव करने के लिए पब्लिक सेक्टर का होना जरूरी था, क्योंकि पब्लिक सेक्टर कम प्राइस पे गुड्स अवेल कराती है लोगों को, इवन सब्सिडाइज रेट पर। इसलिए पब्लिक सेक्टर का रोल लीडिंग हो गया ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन 1950 टू 1990। सो जल्दी से इनको भी लिख लीजिए, फिर हम पढ़ते हैं आईपीआर 1956। So now we are going for the third point under industrial sector, that is IPR, which is called industrial, मैं यहाँ लिख देती हूँ, industrial policy resolution, industrial policy resolution। यानी कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। इसका मतलब ये है कि एक इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन पॉलिसी जो आई थी हमारी 1948 में, उसके बाद हमारी प्लानिंग कमीशन सेटअप हुई, प्लानिंग पीरियड शुरू हुए, प्लान शुरू हुए। मीनवाइल, ड्यू टू द सीरीज ऑफ इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल चेंजेस, वो पॉलिसी आउटडेटेड हो गई। 1948 की आईपीआर पॉलिसी ज्यादा इंप्लीमेंट हो नहीं पाई, काम कर नहीं पाई, और जिस मोटिव से बनाई गई उस मोटिव के अकॉर्डिंग वो उस टाइम की इंडस्ट्रीज को फुलफिल नहीं कर पाई। तो ये सारी प्रॉब्लम क्यों आई, क्योंकि हमारी कंट्री में 1950 में प्लानिंग कमीशन और रिपब्लिक ऑफ कंट्री स्टैब्लिश हुआ, साथ साथ बहुत सारे सीरीज ऑफ चेंजेस आए इन इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल टर्म्स। तो इन सब ने मिलाकर के 1948 की जो आईपीआर पॉलिसी थी उसको सक्सेस नहीं होने दिया। तो फिर सोचा गया कि अब क्योंकि ये जो सीरीज जो 1948 की पॉलिसी है वो सक्सेसफुली काम नहीं कर पा रही है, तो यहां जरूरत हो गई कि हम एक नई पॉलिसी को लेकर आए। एंड एट दैट टाइम ऑन 30 अप्रैल 1956, याद रखना डेट चेंज है, जनरली 1 अप्रैल हम मानते हैं फाइनेंशियल ईयर, बट यहां कब शुरू हुई, 30 अप्रैल 1956 को आईपीआर 1956 लॉन्च करी गई। सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन क्या लॉन्च हुआ, सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। लर्न इट अगेन, क्योंकि एग्जाम में जनरली गलती कर देते हैं। फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन कम इन 1948, सेकेंड कम ऑन विच डेट, 30 अप्रैल 1956। ये डेट याद रखना क्योंकि बहुत अलग से है, जनरली फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो ये 30 अप्रैल को लॉन्च हुई थी 1956 में। अब इस सेटअप में, इस सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में था क्या, मेन फोकस क्या था, तो मेन फोकस यहाँ था क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री ऑन 3 ग्राउंड्स, यानी इंडस्ट्री को 3 तरह से डिवाइड किया गया, क्योंकि हमारी कंट्री में ज्यादातर इंडस्ट्रीज किसके पास थी, पब्लिक सेक्टर के पास थी, ज्यादातर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी। तो उनको ध्यान में रख के 3 शेड्यूल्स में इनको डिवाइड कर दिया गया, सारी इंडस्ट्रीज को 3 शेड्यूल में डिवाइड किया, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। शेड्यूल ए में जो है वो आया एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय स्टेट। इसका मतलब इस कैटेगरी में शेड्यूल ए में वो इंडस्ट्री थी जिसपे पूरा पूरा हक सिर्फ गवर्नमेंट का था, स्टेट का था, यानी जो सेंट्रल में गवर्नमेंट थी, जो स्टेट ओन गवर्नमेंट थी, उसका पूरा पावर था, पब्लिक रोल पूरा था। यानी हम इन शॉर्ट कह सकते हैं पब्लिक सेक्टर डोमिनेट कर रही थी इस सेक्टर को, इस इंडस्ट्रीज को। और इसमें कौन कितनी इंडस्ट्री थी, टोटल 17। याद रखना ये पूछा जाता है नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज विच वर
introduced in Schedule A exclusively owned by state or public sector is 17, राइट। अब वो 17 इंडस्ट्री थी कौन कौन सी कैटेगरी की, ये यहाँ लिखा हुआ इंक्लूड्स आर्म्स एंड अम्यूनेशन, एटॉमिक एंड एनर्जी, हैवी एंड कोर इंडस्ट्री, शिपिंग इंडस्ट्री, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, ऑयल एंड रेलवे। तो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में इंक्लूड हो गई, वापस देख लेते हैं। आर्म्स एंड अम्यूनेशन, एटॉमिक एंड एनर्जी इंडस्ट्रीज, हैवी एंड कोर इंडस्ट्रीज, शिपिंग इंडस्ट्री, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, ऑयल इंडस्ट्री एंड रेलवे। तो ये सारी इंडस्ट्रीज पे किसका हक था, गवर्नमेंट का यानी पब्लिक सेक्टर का। कितनी इंडस्ट्रीज थी इन टोटल, 17 इंडस्ट्रीज थी एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय स्टेट। कौन से शेड्यूल में, शेड्यूल ए में। अब चलते हैं शेड्यूल बी की तरफ। शेड्यूल बी प्रोग्रेसिवली ओन्ड बाय स्टेट, इसका मतलब ये हो गया प्रोग्रेसिवली ओन्ड बाय स्टेट मींस प्राइवेट और स्टेट यानी प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिलकर इस सेक्टर में काम कर रही थी। कौन से शेड्यूल में, कौन सी कैटेगरी में, सेकंड कैटेगरी में। फर्स्ट कैटेगरी पूरी गवर्नमेंट के हाथ में थी, पूरा पब्लिक सेक्टर का रोल था। सेकंड कैटेगरी में पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर काम कर रहे थे। गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को आने की इजाजत दी कि इस सेक्टर में इस टाइप की इंडस्ट्रीज में आप आए और इन्वेस्ट करें और प्रोडक्शन को जंप अप करें विद दी कोलैबोरेशन ऑफ गवर्नमेंट। तो यानी जॉइंट इंडस्ट्रीज थी। ये कैसी इंडस्ट्री थी, जॉइंट इंडस्ट्री थी पब्लिक एंड प्राइवेट के बीच में। कितनी इंडस्ट्रीज के बीच में लॉन्च हुई, इसमें 12 इंडस्ट्रीज हैं। इसमें कितनी आई, 17, इसमें कितनी आई, 12 इंडस्ट्री। अब आई कौन कौन सी इंडस्ट्री थी इसमें, एग्जांपल लाइक यहाँ पे हमने देख लिया आर्म्स, एटॉमिक एनर्जी। तो यहाँ पे किस तरह की इंडस्ट्री सेटअप हुई, एल्यूमिनियम, मशीन, माइनिंग, टूल्स एंड फर्टिलाइजर। मीन्स सपोर्टिव इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्रीज एक्चुअली इन हैवी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर सके, क्योंकि बेसिकली तो हैवी इंडस्ट्रीज सारी यहाँ थी। ये उससे थोड़ी सी लाइट इंडस्ट्रीज थी जो जरूरत थी मशीन, टूल, इक्विपमेंट्स बनाने के लिए। तो उन एरियाज में यानी हम ओवरऑल अगर छोटी सी बात करें, मशीन, माइनिंग, टूल्स, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर, ये सब क्या है, इंटरमीडिएरीज हैं, यानी कि ये सब कैपिटल रिक्वायरमेंट है। तो कैपिटल बेस्ड इंडस्ट्री ज्यादातर किसके हाथ में चली गई, प्राइवेट और स्टेट गवर्नमेंट की ज्वाइंट वेंचर में। यानी पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर के 12 ऐसी इंडस्ट्री चला रही थी जो कि कैपिटल बेस्ड थी, मशीन टूल बेस्ड थी, फर्टिलाइजर बेस्ड थी और एल्यूमिनियम, माइनिंग एंड machinery based thing. So these are schedule B type of industry. Moving to schedule C. Now schedule C says owned by private sector, यानी अब यहाँ गवर्नमेंट का रोल खत्म। देखो शेड्यूल ए में पूरी तरह से गवर्नमेंट काम कर रही थी, शेड्यूल बी में प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम कर रहे थे, लेकिन शेड्यूल सी में गवर्नमेंट हट गई, यानी इसमें जो बची हुई इंडस्ट्री थी 17 और 12 तो यहाँ चली गई। अब जो रिमेनिंग इंडस्ट्री थी हमारी कंट्री में वो सब किसके पास आ गई, प्राइवेट सेक्टर के पास। तो प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पे काम करने की फ्रीडम मिली, बट ऐसे ही नहीं मिली, यहाँ भी गवर्नमेंट बहुत होशियार थी। क्या किया, कंट्रोल्ड बाय स्टेट थ्रू लाइसेंसिंग सिस्टम, यानी यहाँ पे गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को अकेले नहीं छोड़ा, फ्रीडम ऐसे नहीं दी, उनको बाउंड कर दिया लाइसेंस लेने के लिए गवर्नमेंट से। लाइसेंस लेंगे प्रोडक्शन का या ऐसे प्रोजेक्ट का जिससे पब्लिक वेलफेयर हो, इनकम इकोनॉमी की बढ़े, रिमोट एरिया एडवांस हो, रूरल एरिया बढ़े, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो। यानी कि गवर्नमेंट ने यहाँ भी अपना दिमाग लगाया और प्राइवेट सेक्टर को अकेले काम करने के लिए भी इजाजत दी, लेकिन थ्रू लाइसेंस सिस्टम। अगर लाइसेंस होगा तभी वो अकेले इस एरिया में इन टाइप की इंडस्ट्रीज में काम कर सकते थे। फॉर दिस रीजन लाइसेंस राज पॉलिसी इंट्रोड्यूस हो गई हमारी कंट्री में, और वो किसके अंदर इंट्रोड्यूस हुई, इंडस्ट्रियल एक्ट 1951। याद रखना, ये पॉइंट हाईलाइट कर रही हूं मैं वापस से। लाइसेंस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर शेड्यूल सी विच इज एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय प्राइवेट सेक्टर but controlled by government through license policy which come under Industries Act 1951। तो इंडस्ट्री एक्ट कब पास हुआ, इंडस्ट्री एक्ट पास इन 1951। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कितनी तरह से इंडस्ट्रीज को क्लासिफाइड किया और ओवरऑल इकोनॉमी को जंप करने के लिए, बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने 3 कैटेगरी बना दी, जिसका नाम पड़ा कैटेगरी 1 शेड्यूल ए, कैटेगरी 2 शेड्यूल बी, कैटेगरी 3 शेड्यूल सी। टोटली कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, पार्शियली कंट्रोल बाय गवर्नमेंट मींस प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों काम कर रहे थे, एंड कंट्रोल्ड बाय ओनली प्राइवेट बट थ्रू लाइसेंस पॉलिसी, बिना लाइसेंस के काम नहीं कर सकते थे। तो इसके थ्रू गवर्नमेंट ने इनको यहाँ भी ऑब्जर्व करके तो रखा ही। 17 इंडस्ट्री, 12 इंडस्ट्री, रिमेनिंग ऑल इन दिस कैटेगरी। Heavy and all
विच इज रिक्वायर्ड हैवी इन्वेस्टमेंट, वो सारी इंडस्ट्री किसके पास थी, शेड्यूल ए में। जिसमें कम इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी वो किसके पास आ गई, जॉइंट वेंचर में। और जिसमें सबसे कम जरूरत थी वो सब प्राइवेट पे चली गई। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने ये 3 शेड्यूल बना के इंडस्ट्रीज को क्लासिफाइड किया। कौन सी पॉलिसी में, सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 के अंदर। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया कि इंडस्ट्रियल सेक्टर की जरूरत क्यों थी, पब्लिक सेक्टर का रोल क्यों डोमिनेटिंग था, क्यों पब्लिक सेक्टर लीडिंग रोल पे थी। थर्ड पढ़ा हमने आईपीआर, जिसमें हमने अभी सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ा है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इट्स लॉन्चिंग, राइट। अब हमें पढ़ना है लाइसेंसिंग सिस्टम, जो शेड्यूल सी के थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ हमारी कंट्री में। तो ये टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे अलोंग विद द लास्ट टॉपिक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, क्योंकि ये आपको समझना बहुत जरूरी है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का कंसेप्ट हमारी कंट्री में इंट्रोड्यूस हुआ प्लानिंग पीरियड में, इन्हीं सालों में, जिसकी वजह से आज अगर हम देखें, आपको एक कंसेप्ट याद होगा जो गवर्नमेंट ने अभी जो हमारा आत्मनिर्भर भारत पैकेज अभियान चल रहा है उसमें एमएसएमई को बहुत सपोर्ट किया है। तो ये एमएसएमई कहां से आई, ये वर्ड जो एमएसएमई जो बार बार आता है आज के टाइम में, वो एक्चुअली ओरिजिनेट यहीं से हुआ है। तो इसको हमें पढ़ना है। तो आप जल्दी से ये सारे शेड्यूल्स लिख लीजिए, सारे क्लासिफिकेशन लिख लीजिए, देन आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो। Okay, I hope you all have written. नहीं भी लिखा है तो pause the video and just write down the whole category of these schedules so that you can understand them very well. So now we'll meet in the next video with licensing policy of the government, why it was required and how it was implemented, along with the small scale industry. Till then, bye bye.